Good morning students, welcoming you to the next video of the topic principle of inheritance and variation. In the last two videos we have learned about inheritance, about variation, we have learned about genetics, we learned about Gregor Johann Mendel, why did he choose pea plant for his experiments, what was the outcome of his first experiment, that was the monohybrid cross, what a monohybrid cross is, and also we have learned about the deviations of the laws. Okay, the law of dominance, we had the deviation for it, which was your incomplete dominance and codominance. Incomplete dominance we can find in case of few plants, including your dog flower and your Mirabilis jalapa, fine. Whereas the codominance can be very easily observable in human blood groups, fine. So today we will be learning something new about the next laws or the next experiments of Mendel. So let us go. Yep. Up to now we had learned about the inheritance of a single gene. Okay, we were taking a single gene or a single character which used to be inherited or that inherited from one generation to the another. Today we will be learning about the other experiment of Mendel where he took two genes or two characters for his experiment. Okay, and the law he postulated by the end was the Mendel's law, and that was law of independent assortment. Independent, we all know assortment means assort hona, milna, mix hona, forming a group. Okay? Now what is this all about? Let us see. Before that, let us learn what does this law says. It states that factors for different pairs of contrasting characters in a hybrid assorted independently during gamete formation. Abhi, just see the statement. After the experiment, I'll tell you what this actually meant. Now, Mendel's second law can also be expressed by dihybrid cross. क्योंकि देखो वहाँ हम लोग ने क्या था, हम लोग ना एक कैरेक्टर या एक जीन ले रहे थे, ठीक है. सो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया, टेकिंग वन कैरेक्टर वाला क्रॉस. Here, as we are reading about the inheritance of two genes, we are taking a dihybrid cross, ठीक है. Where the cross between two parents are made taking two different contrasting characters. दो characters इधर हम लेंगे, उधर हमने लिया था height of the plant, monohybrid cross में, याद है ना. इधर in dihybrid cross हम दो characters लेंगे and Mendel ने दो characters choose किए थे, that was the color of the seed and the shape of the seeds. So let's move and find out what it was. See, so Mendel ने जो seeds लिए थे, he took येलो एंड राउंड कलर सीड्स, ठीक है. उन्होंने येलो राउंड कलर सीड्स लिए एंड क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज टू व्हाट जीन्स टुगेदर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. अगेन दो आर क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एक सिंगल कैरेक्टर और सिंगल जीन दैट कम्स इन पेयर. सो दिस इज फॉर राउंड, कैपिटल वाई, दिस इज फॉर येलो. सो दे टुगेदर आर कमिंग, सो इसलिए हम आर आर वाई वाई डिनोट कर रहे हैं. क्लियर? नाउ उसके बाद यू कैन सी ही टुक द अनदर वन और द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर दैट वाज रिंकल्ड एंड ग्रीन, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन को उन्होंने डिनोट किया था ऐसे, ठीक. दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन एंड इट वाज डिनोटेड एज आर आर वाई वाई. अगेन यू सी हम सेम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, बस डोमिनेंट कैरेक्टर्स के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं. फाइन. सो ही टुक टू डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द सीड. एक तो कलर लिया उन्होंने एंड उन्होंने शेप लिया एंड दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ले लिए. फाइन. अभी उन दोनों को उनका फिर गैमेट्स निकलना ज़रूरी है क्योंकि अभी दो कैरेक्टर्स लिए हैं, दो जीन्स हैं, तो गैमेट्स में भी दो ही आएगा. So here the red and yellow wala will form the gamete R and Y, wrinkled will form the gamete RY, small ry. Now cross करेंगे उसको and in the F1 generation again to his surprise he got all round and yellow colored seeds, ठीक है. बाहर से सब round and yellow थे. Clear? But genotypically, as we learn, though different parents होते हैं, so the first F1 or the F1 generation is supposed to be hybrid, ठीक है. ये आ गया hybrid इधर. When you can study the genotypic, उसको genotypic पढ़ने के लिए मेंडल बाद में हमेशा टेस्ट क्रॉस करते थे.
व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? व्हेन द F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, एक रिसेसिव पेरेंट। इधर रिसेसिव पेरेंट कौन है? रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। इसको इसके साथ जब क्रॉस करेंगे हमको उनका ये पता चल जाता है जीनोटिपिक रेशियोज। सो वट एवर इट इज, फॉर द टाइम बिंग इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स और ऑल द सीड्स वर राउंड एंड येलो, ठीक है। वेयर इज द कैरेक्टर फॉर ग्रिंकल्ड एंड ग्रीन वॉज नॉट शोन, वो नहीं आया, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। सो अनलाइक द मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगेन, ठीक है, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस किया गया है, सॉरी अनदर क्रॉस वॉज डन, और सेल्फ पॉलिनेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड हियर ही गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। सी, अभी हमने इन लोगों के गैमेट्स, दिस वॉज F1 प्रोजेनी, सीखे थे, RRYY, ये हमको F1 में मिला था, डन। नाउ इसी को इसके साथ जब हम ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, सो दीज सब इधर एक मेल और फीमेल ले लेते हैं, ठीक है। इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी, दो क्यों ले रहे हैं, एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है सपोज, ठीक है। दीज आर द गैमेट्स वी आर गोइंग टू गेट, R कैपिटल R Y, ठीक है। एंड अभी इसको हम करेंगे क्रॉस। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो, इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो, जब भी हम F2 क्रॉस ले रहे हैं वी आर ऑलवेज टेकिंग अ स्क्वायर, ऐसा एक बॉक्स ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस पुनेट स्क्वायर हेल्प्स टू गेट द प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग्स और द प्रोबेबल प्रोपोर्शंस और द प्रोबेबल प्रोजेनी और उसके प्रोपोर्शंस और रेशियोज जानने के लिए हेल्प करता है। rather than crossing in a random way, it helps in a very proper way to get the probabilities of the offspring produced, ठीक है। सो इस स्क्वायर को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, क्लियर? नाउ यस, सॉरी, या सी हियर, इधर लिखा है फॉर कैपिटल R डोमिनेंट एलीली फॉर सीड शेप राउंड, स्मॉल r रिसेसिव है रिंकल्ड सीड के लिए, कैपिटल Y जहाँ है वो डोमिनेंट है येलो कलर के लिए, स्मॉल y इज़ रिसेसिव फॉर ग्रीन कलर। सो जब हम फ्यूज़ करेंगे, एवरीबडी यू कैन डू इट एट योर होम, इट इज़ वेरी फन टू डू, बस इसको क्रॉस करना है एंड यू हैव टू गेट इट। आफ्टर द क्रॉस ही फाउंड दैट फिनोटिपिकली द रेशियो ऑफ येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, green round and green wrinkled came in the proportion of a ratio 9:3:3:3:1, ठीक है। क्योंकि देखो ये चार गैमेट्स हैं, सो 4 into 4 वी आर गेटिंग 16, सो वी आर सपोज टू गेट 16 ऑफस्प्रिंग्स इन द F2 जनरेशन। 16 में से 9 of them were your yellow and round and yellow seeds. 3 of them were round, yellow and wrinkled. Again 3 of them were green and round, and just one was your pure homozygous, your green and wrinkled seed, that was the parent we got. So this is the phenotypic ratio for your dihybrid cross. However, okay, ये test cross किया था उन्होंने just to check it. However, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, यहाँ जो इधर जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है इसका जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। वाई? बिकॉज यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ जीनोटाइप्स, दिस इज अनदर वन, ये देखो एक अलग जीनोटाइप है, फाइन, हियर वी आर गेटिंग अनदर जीनोटाइप, हियर अनदर जीनोटाइप। सो हियर एक्चुअली देयर आर 9 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है। एंड अगर उसको हम अरेंज करेंगे वो ऐसा प्रोपोर्शन में कुछ आता है 1:2:1:4:2:2:1:2:1, बीच में 4 लिखना है, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, रिवर्स कर देना है, 4 के बाद उसको रिवर्स कर देना है। सो दिस इज़ द जीनोटिपिक रेशियो फॉर योर डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर, फाइन। एक्चुअली ये नॉर्मली एग्जाम्स में आते नहीं हैं, बट दिस इज़ व्हाट यू शुड लर्न एंड दिस इज़ फन। आफ्टर गेटिंग आउट द फिनोटिपिक रेशियो यू कैन, आप उसका जीनोटिपिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक मेकअप देख के आप खुद उसका जीनोटाइप निकाल सकते हो, डन। एंड द रेशियो विल कम समथिंग लाइक दिस, 1:2:1:2:4 2:1:2:1। आसानी से याद कर लिखने के लिए, क्योंकि 9 हमको जीनोटाइप्स मिलेंगे, बीच में 4 लिख लेना है, इसके आगे चालू करना है 2 1 2 1 2 1 2 1, ख़त्म, easy to remember, clear? Now
जैसे मैंने कहा टेस्ट क्रॉस हमेशा करते थे मेंडल टू नो द जीनोटिपिक्स, क्या क्या जीनोटाइप्स प्रोबेबली मिलेंगे। सो दिस वाज योर डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड या अभी चलते हैं उसके लॉ की तरफ, दैट व्हाट इट एक्चुअली सजेस्टेड। ठीक है, इट इज सेइंग दैट फैक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ हाइब्रिड असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अभी असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखो ये गैमेट्स किस तरह के फॉर्म, ओके या ये गैमेट्स किस तरह के फॉर्म हुए? आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। ठीक है, दीज आर द गैमेट्स ऑफ मेल। सपोज फीमेल का भी सेम आएगा, आर वाई आर स्मॉल वाई आर वाई। सो ये तो गैमेट फॉर्मेशन हो गए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से हमेशा सेल डिवीजन में क्या होता है, गैमेट सेपरेट होते हैं, दिस इज डन। लेकिन व्हेन दे आर कमिंग इनटू द ऑफस्प्रिंग दे हैव टू अ डिप्लॉयड, एक डिप्लॉयड सेल बनना ज़रूरी है एंड उसके लिए हैप्लॉयड एक पेरेंट, दोनों पेरेंट में से फादर में से एंड मदर में से एक हैप्लॉयड गैमेट आता है। सो नाउ व्हाट डज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स? इट मीन्स one gamete it can independently assort with any of these gamete। ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई है ये बस कैपिटल आर कैपिटल वाई से ही असॉर्ट करेगा या उसके साथ ही मिक्स करेगा या उसके मिक्स तो नहीं करेगा, ग्रुप बनाएगा, ये इसके साथ ही हमेशा आएगा गिविंग अ कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वाला प्रोजेनी देने के लिए। नो, नेसेसरी नहीं है। ये गैमेट इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो कैपिटल आर वाई है ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है। सिमिलरली ऑल दिस थ्री कैन जस्ट क्रॉस और दे कैन फॉर्म अ ग्रुप और दे कैन कम टुगेदर विथ एनी ऑफ द गैमेट्स दे वांट। वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये अगर कैपिटल डोमिनेट है तो ये इसी के साथ आएगा या फिर ये एक पर्टिकुलर गैमेट के साथ आएगा। देयर इज़ नो लॉ, नो रेस्ट्रिक्शंस, नो लिमिटेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइक दैट। इनफैक्ट द गैमेट फॉर्म होने के बाद व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ग्रुप हो सकते हैं, दे इंडिपेंडेंटली कैन मतलब एक साथ आके एक डिप्लॉयड सेल बना सकते हैं। फाइन, दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब गैमेट्स क्लोज आते हैं, टुगेदर आते हैं, दे कैन ग्रुप विथ एनी ऑफ देम। इंडिपेंडेंटली वो लोग ग्रुपिज्म हो सके, इंडिपेंडेंटली दे कैन फॉर्म अनदर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के साथ, वो लोग जीन्स के साथ, वो लोग गैमेट के साथ वो लोग फ्यूज़ होके, और फ्यूज़ तो नहीं, बाय कमिंग टुगेदर दे कैन फॉर्म अ कॉम्बिनेशन एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वी आर गेटिंग जो आपके नॉर्मल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे, ये वाले जो थे आपके होमोजाइगस या राउंड एंड येलो सीड्स, ग्रीन एंड रिंकल सीड्स, F1 जनरेशन में भी हमको हाइब्रिड वाले मिले थे राउंड एंड आपके ये येलो सीड्स। ठीक है, हियर वी आर गेटिंग मोर जीनोटाइप्स रेशियोज। फाइन, क्योंकि गैमेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली लिंक हो रहे हैं, सो दैट जो फिनोटिपिक रेशियो है चेंज हो रहा है। इधर वी आर गेटिंग फ्यू मोर कॉम्बिनेशंस, even genotypically we are getting few more combinations. Clear? Done? This is your phenotypic, this is your dihybrid cross, and from the dihybrid cross the law that was concluded was your law of independent assortment. इसका मतलब होता है गैमेट जब फॉर्म हो जाते हैं, when they come together to form a diploid cell they can assort independently of each other। वो segregate हो जाते हैं, क्रोमोसोम जो होता है, जो जीन होते हैं वो segregate हो जाते हैं during cell division and again they come together इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं है कि सपोज ये दोनों सेग्रीगेट हुए, एक क्रोमोसोम एक सेल का दो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में वो दोनों ही एक साथ आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ कमिंग टू अनदर थ्योरी, ठीक है, दैट वाज गिवन बाय सुटोन, वॉल्टर सुटोन एंड थियोडर बोवेरी। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। Who proposed your chromosomal theory of inheritance? That is Walter Sutton and Theodore Boveri। आप Sutton and Boveri भी लिख सकते हो। Fine.
ना यहाँ आता है सी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इनहेरिट क्या होता है, जीन होता है, या मेंडल ने उसका नाम फैक्टर दिया था। जब तक वो कार्ल कॉरेंट्स एंड एवरीवन दे डिड नॉट रीडिस्कवर नहीं किया था एंड दे डिड नॉट से दिस वाज अ जीन, तब तक वो फैक्टर ही था। सो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जीन इनहेरिट होता है या फैक्टर इनहेरिट होता है। नाउ वी विल लर्न इन दिस टॉपिक दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इट मीन्स क्रोमोसोम कैन ऑल्सो बी इनहेरिटेड। फाइन, लेट अस लर्न हाउ। सो वॉट सुटोन एंड बोवेरी ने क्या किया ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब तक इन्होंने किया, जब मेंडल कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट्स, तभी तक बहुत मेजर डिस्कवरीज नहीं आए थे। जैसे सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन के बाद उसका प्रोसेस होता है, जो भी होता है, न्यूक्लियस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, डीएनए, आरएनए, जीन्स, इस कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया था। बट जब तक 1900 तक आ गया, ऑल दिस मेजर डिस्कवरीज वर मेड अप टू देन एंड पीपल वर अवेयर ऑफ व्हाट रियली हैपन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, सेल के साथ क्या होता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जीन क्या है, ऑल दिस वाज नोन अप टू देन। सो सुटोन एंड बोवेरी ने क्या किया, उन्होंने दे स्टडीड और दे ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। नाउ यू हैव लर्न देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस जहाँ एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होता है टू गिव राइज टू 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, ठीक है, 2n है तो ये सेल एक दो 2n डॉटर सेल ही देगा, ठीक है, एंड दिस इज मोस्टली हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी रिपेयर के लिए होता है। द अनदर टाइप इज अ मियोसिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन, where the diploid cell gives rise to 4 haploid daughter cell or gametes at the end. Fine. So इसमें क्या होता है, we will learn this process, आपके chapters में है later, we will learn this during the cell division, क्योंकि सेल का हर एक हिस्सा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। So all the cell content including your DNA and everything, the chromosomes even have to be doubled, वो डबल होते हैं एंड वो मूव करते हैं बिकॉज दे हैव टू फॉर्म अनदर, वो एक जो सेल होता है वो 2 में डिवाइड होता है। सो ऑल द सेल कंटेंट हैव टू मूव ओके, डिवाइडिंग इनटू 2। सेम क्रोमोसोम भी मूव करता है, इट विल बी डिवाइडिंग इनटू 2, क्लियर। उसका एक रेप्लिकेशन करेगा, वो पहले मल्टीप्लाई करेगा एंड फिर डिवाइड करता है। सो इन्होंने क्या किया, सुटोन एंड बोवेरी ने, दे रेड आउट और दे वर्क आउट ऑन द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, दे एक्चुअली लर्नड अबाउट इट। फाइन, आई एम सॉरी, okay, then now they saw that the movement behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes. The chromosome movement is used to explain Mendel's law. अभी क्या था, उन्होंने देखा, सी here is a term you can see was parallel to the behavior of genes. हमको पता है during cell division और during reproduction होता है, या meiosis होता है, through the gametes the genes are inherited or they move from one generation to the another. And genes कहाँ locate होते हैं, they are on the chromosomes only ना। अगर क्रोमोसोम नहीं मूव होगा तो जीन कैसे मूव होगा। So they said that along with the genes, the chromosomes also move from one generation to the other. It means the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. Clear? The chromosome, and using this chromosomal movement, they further studied Mendel's law, and by this law they came to know and they got the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle, which is called as chromosomal theory of inheritance. जैसे अभी हमने पढ़ा था law of segregation, gametes separate होते हैं, same gametes कैसे separate होते हैं, the chromosomes actually separate होते हैं, fine, and the genes on them. So अगर क्रोमोसोम एक जनरेशन, अगर जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इनहेरिट हो रहा है या मूव हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, क्रोमोसोम इज़ कमिंग अलॉन्ग विथ इट, पैरेलली आ रहा है। जहाँ जीन में अल्ट्रेशन होगा, क्रोमोसोम्स में भी अल्ट्रेशन होगा, सेम टू सेम, पैरेलली बिहेव करेंगे दोनों। अगर चेंज होगा तो दोनों में होगा, पास ऑन होंगे तो दोनों में होंगे, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज, एंड दिस क्रोमोसोमल थ्योरी वाज यूज्ड टू स्टडी मेंडेलियंस लॉ, एंड आफ्टर दैट they came out with the chromosomal theory of inheritance. According to this, chromosomes and genes are present in pairs in diploid cell. ये हमको पहले भी पता है, एक diploid cell जो होता है उसमें genes and chromosomes both are present in pairs. वो लोग हमेशा pairs में आते हैं, इसलिए हम 2n लिखते हैं, है ना।
एंड वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी, जहाँ से 22 हैं ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम. डन. नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और म्यूसिस. डेफिनेटली यहाँ देखो होमोलोगस, अभी आप बोलोगे मैम होमोलोगस ही क्यों होता है, हेट्रोलोगस भी तो हो सकता है, होमोलोगस क्रोमोसोम ही क्यों? बिकॉज जब हम स्टार्ट करते हैं ना फॉर्मेशन से, सो इट इज़ सपोज टू बी द पेरेंट्स, द पेरेंट क्रोमोसोम, एंड द पेरेंट्स आर ऑलवेज होमोलोगस, दे आर नॉट द हाइब्रिड वंस. ठीक है, मदर सपोज यही ले लेते हैं हम लोग. सो इसीलिए पहले व्हेन वी आर स्टार्टिंग द सेल डिवीजन, इट स्टार्ट विद द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेम होते हैं उसमें. सो वी टेल दिस आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन और म्यूसिस के टाइम वो लोग सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, दे विल सेपरेट देयर बाय फॉर्मिंग गैमेट्स. इसमें से निकलेगा टी कैपिटल टी, इसमें से निकलेगा स्मॉल टी. फाइन. एंड द थर्ड इज अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द क्रोमोसोम नंबर टू डिप्लॉयड कंडीशन. ठीक है, पेरेंट क्या होते थे, पेरेंट पहले क्या होते थे, वो लोग डिप्लॉयड होते थे, राइट? द पेरेंट सेल्स, sorry, I'm really sorry. The parent cells, ठीक है, ओके, द पेरेंट सेल्स क्या होते हैं, हमेशा दे आर डिप्लॉयड. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो लोग हैप्लॉयड हो जाते हैं. एंड अगेन दिस हैप्लॉयड, एक फादर में से एक मदर में से, दिस हैप्लॉयड गैमेट्स कम टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, देयर बाय फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड कंडीशन अगेन. वो जो क्रोमोसोम हैप्लॉयड होते हैं ना, हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, एक हैप्लॉयड फादर में से आएगा, एक हैप्लॉयड मदर में से आएगा, एंड इन द ऑफस्प्रिंग अगेन दे विल बी फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड कंडीशन. हैप्लॉयड मिक्स होकर डिप्लॉयड कंडीशन हो जाते हैं. फाइन. नाउ ये तो इन्होंने डिस्कवर किया था मेंडलिज्म में, सूटन एंड बुबरी ने. नाउ देयर वाज अनदर वन कॉल्ड थॉमस हंट मॉर्गन, और उनको बोलते हैं टी.एच. मॉर्गन भी आप शॉर्ट में बोल सकते हो. टी.एच. मॉर्गन एंड हिज colleagues conducted the experiment of chromosomal theory of inheritance, but in fruit flies. आप लोगों ने देखा होगा फ्रूट के ऊपर जो फ्लाइज घूमते हैं उनको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं. उसका नाम है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट फ्लाई इज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ठीक है, टी.एच. मॉर्गन ने ही स्टडीड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. एंड व्हाट वाज द रीज़न ऑफ हिज टू सिलेक्ट अगेन द ड्रोसोफिला. उन्होंने ड्रोसोफिला क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज इट वॉज सुइटेबल फॉर जेनेटिक स्टडीज़. ठीक है, मेल एंड फीमेल बहुत लाइक दे वेरी ना क्लियर डिफरेंशिएशन था, बड़े स्पेसिफिक थे, एंड इट वॉज वेरी मच सुइटेबल फॉर जेनेटिक स्टडीज़ पढ़ने के लिए. ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी में सिंपल सिंथेटिक मीडियम लेके भी ग्रो कर सकते थे. ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता था. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स. बस 2 हफ्ते में उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता था. A single mating could produce a large number of progeny flies. एक सिंगल मैटिंग करते थे ना, तो द ऑफस्प्रिंग्स, द जनरेशन और द फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन और लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते थे, विच वॉज वेरी कन्वीनियंट टू स्टडी. ठीक है. नाउ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लाइज. लाइक आई सेड, मेल एंड फीमेल फ्लाइज बड़े डिस्टिंक्ट थे, बड़े स्पेसिफिक थे. सो इट वॉज वेरी कन्वीनियंट टू रीड अबाउट द कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स. Now many types of hereditary variations can be seen with low power microscope. ठीक है, इसके लिए बड़ा हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा ये नहीं लगता था. विद वेरी लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ भी इसकी हेरिडिटरी वेरिएशन माने पेरेंट्स मेल एंड फीमेल फ्यूज़ होते हैं, तो उसके बाद या फिर उनमें रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग आता है उसमें क्या वेरिएशन आता है. अगेन जो जनरेशन वाइज, एक जनरेशन से दूसरा से तीसरा, जो जनरेशन वाइज वेरिएशन आता है या डिफरेंस आता है, that was very convenient to study, easy and convenient to study. So that's why he chose your Drosophila melanogaster. ठीक है. So this was about the third law of Mendel, that was law of independent assortment. After that, law of independent assortment में क्या उन्होंने बताया कि the gametes formed after segregate during gamete formation या meiosis में जो gamete separate होते हैं, segregate होते हैं, they can independently assort with each other. They can come together independently with other gametes, and that is completely fine. They were forming a new type or a new variation or a new genotype बोल सकते हो. हाँ, fine. Now उसके बाद हमने देखा, and yeah, this law can be studied
by dihybrid cross, a cross where two contrasting characters we are taking और two contrasting pairs of हम ले रहे हैं, ठीक है, और two characters हम choose कर रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ किया था मेंडल ने, the seed color and the seed shape, fine. लास्ट में हमको phenotypic gen ratio मिला 9:3:3:1 and this is very helpful when we do it by Punnett square, बहुत easily हमको मिल जाते हैं, ठीक है, expressions, genotypic expressions, phenotypic expressions. After that we learnt about chromosomal theory of inheritance. Sutton and Boveri ने पहली बारी chromosomal inheritance, chromosomal theory of inheritance के बारे में बताया. After studying the chromosomal or the movement of chromosomal behavior during meiosis, however again T.H. Morgan ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है फ्रूट फ्लाई, उसके ऊपर अगेन उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करके ही जस्ट लेट नो अस. Clear? So this was all about your Mendel's law, third law, and about chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance के हिसाब से the behavior of gene is parallel to the behavior of chromosome, या the movement of gene या movement of chromosome के साथ same होता है. Whatever the changes, whatever the inheritance, gene जहाँ जहाँ जाता है, जो जो करता है, chromosome does the same too. Fine. Okay. So this was all about today's video. In the next video we will be learning something new. Linkage पढ़ेंगे, recombination पढ़ेंगे. We have sex linked diseases or disorders. Sex determination भी है. We will be learning in the next videos. So thank you for today. Meet you in the next video.